Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSB physics class. So, this is lecture 1 on ray optics and optical instrument. So, optics for your class 12, NEET and JEE. Okay. So, electromagnetic radiation. So, whatever we are seeing in the universe, lots of electromagnetic radiations. So, from microwave to and hard X-ray. है ना? So, typically now in this broad spectrum will be considered in the ray of light 100 nanometer to 1000 nanometer this region. This is और typically जो है 400 से basically जो 400 से 700 nanometer in range में basically this is called light, visible light. That visible light we can see. So nanometer and everything. So here we are discussing ray optics, but we are discussing wavelength of this. So this is the peculiarity, and this, light is a peculiar thing. So it is sometime it is wave, sometime it is as a particle nature. So इसका dual nature है ना. So dual nature जो है आप वो भी पढ़ेंगे, dual property of radiation everything है ना. So रे ऑप्टिक्स में जो है पहले जो है आप ये रे ऑप्टिक्स में जब लाइट इज वेव, वो अपने वेव थ्योरी में पढ़े हैं. अब नाउ वेवलेंथ ऑफ दिस इज टिपिकली 100 नैनोमीटर. सो आप किसी भी पोजीशन पे आप जैसे मिरर में आप अपना मुंह देखते हैं या रिफ्लेक्शन देखते हैं, सो वहां पे ऑब्जेक्ट डायमेंशन है ना. ऑब्जेक्ट जो है डायमेंशन जो है वेरी मच ग्रेटर देन जो है लाइट का डायमेंशन. एंड लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, one point to another point in a straight line. So light can be considered as a ray of particle ray है ना. ray of particle है ना. This particle ray, this concept was given by corpuscular theorem of Newton. न्यूटन ने उस टाइम पे पार्टिकल नेचर जो है फर्स्ट उन्होंने दिए थे. फिर बाद में अपने हाइजन ने ओए प्रॉपर्टी ये सब डिस्कस किए थे है ना. सो फर्स्ट जो थ्योरी आया, सो दिस इज द कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ रेडिएशन, जो है पार्टिकल कॉर्पस्कुलर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. So that's why, and ray of not a single particle, there are lots of particle in a light. So this is a beam of light. Okay, this is called beam of light. Okay, now what will be the typical energy range and everything. Now 1 angstrom, this unit 10 to the power minus 8 centimeter equal to 10 to the power minus 10 meter equal to 1 upon 10 into 10 to the power minus 9 meter. ये भी लिख सकते हैं ना. 10 to the power minus 9 means 1 nanometer. This is 1 nanometer. So 1 nanometer equal to 10 angstrom. ये आपको हमेशा चाहिए. Now we know energy equal to h nu है ना. So h c over lambda. H is the Planck constant and c is the velocity of light in vacuum. Whatever it is how much it is? 10 to the power 8 meter per second. So this is the highest speed in universe in vacuum. So light का स्पीड जो वैक्यूम जो है इसमें सबसे ज्यादा है. किसी का वेलोसिटी, किसी का जो ग्रुप वेलोसिटी ऐसा ज्यादा नहीं होता. फेज वेलोसिटी में भी वो बाद में बताएंगे, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी है ना. सो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी इट कुड नॉट बी हायर देन पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम व्हिच इज 3 into 10 to the power minus 8. ठीक है. नाउ जो है आपका ये एच प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है. सो लैम्डा. सो आप जो है आप एनर्जी इन ईवी ये अगर बैठाएंगे, सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1240 ओवर लैम्डा इन नैनोमीटर. सो दिस इज द टिपिकल इक्वेशन. और थोड़ा सा आपको ये देखना है जो है. आओ आप जो हम रे ऑफ लाइट और इसका जो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसमें नाउ हियर ई इक्वल टू दिस ईवी इक्वल टू, ये आपको हमेशा ये वाला रिलेशनशिप आपको याद रखना है ना बार बार. ये नैनोमीटर में है ना. दिस इज इन लैम्डा इन नैनोमीटर. सो 100 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर में इसका हाउ मच वुड बी द एनर्जी. एनर्जी विल बी 100 nanometer is more, say wavelength is smaller, energy is
larger. Okay, so 1000 means 1.24 ev, this is in ev है ना, to 12.4 ev, this is the typical energy range of visible light. Now for x-ray, x-ray is again is the x-ray is a particle nature and the wave nature, so its energy will be जो है of the order of 10 to जो है 1 to 10 kV है ना, 1 to 10 kV और जो है आपका और थोड़ा सा या 100 kV तक मान सकते हैं, 100 kV, दिस इज योर x-ray, and above 100 kV this is gamma ray. So lots of the MeV and GeV energy gamma rays is there in universe है ना. So X-ray and gamma rays, so this is the basic definition. So how much is the wavelength कैलकुलेट कर सकते हो, इतना kV है तो इसका wavelength भी कैलकुलेट कर सकते हो है ना, this from using this relationship. Okay, so this is basically very introduction. Now as the object dimension is very much larger than wave nature of this wave length of this particle light, so that's why we consider in this chapter the ray optics है ना. In this lecture series we will be discussing on reflection of light है ना, reflection, refraction, dispersion of light है ना. So this is the सब particle nature of है ना. So आपका जो है and now the source of light, so there will be source of light, one is self luminous and another in non luminous. So self luminous is sun, जहाँ से अपना टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन लुमिनस आवर इज अर्थ मून है ना, मून आवर अर्थ, so this is the source of energy. So there will be different types, so in your previous classes, class 9 and 10, so you know the image and everything, so different types of image and something. So there is a real image है ना, real image, and there is a virtual image. So when light, this is the plane जो है ये glass मान लीजिए, here light is incidenting at some angle, so I will be drawing with a bigger one so that you can all see this. So this is the normal and light is incidenting and this is reflecting, this is O, this is n prime normal, this is A incident light जो है ना, and this is reflected light. So OA is है ना incident light and OB is the reflected light. Now what is the situation in this is the glass, so what will be here, so some portion will be reflected, some portion will be light is absorbed, so reflection is there, some portion is absorption मतलब यहाँ कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, some portion is light will be bent here है ना. So some of the portion जैसे ये सीधा ना जाके इसमें this is called refraction है ना, ये आपने पढ़ा भी है पर फिर भी आई विल रिकैपिंग दिस. सो रिफ्लेक्शन, सो टोटल लाइट का जो है, एंड दिस इज थर्ड पोर्शन इज योर रिफ्रैक्शन. जो three phenomenon happens when light incident on a medium. If your medium is totally reflecting, so if it is a coating with जो है mercury और aluminum जो है ना ये coating होगा, so total reflection up to 80%. So in that case it will be 90%. So it will be called mirror. So what is this? Is mirror. So this is the plane mirror है ना. This is your plane mirror because maximum light is reflecting. So if your point is here, so when you are drawing an image, there should be at least two light, है ना, two ray of light. So your image will be formed in this portion. So light is incident in this and it is reflecting this, and another one is जो है आपका
अनदर वन इज दिस इज मिरर रिफ्लेक्ट, ये जो है यहाँ से लाइट यहाँ से जा रहे और ये जो है जस्ट लाइक ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे। सो दिस इज योर मिरर, है ना। और थोड़ा सा इसमें भी देख सकते हैं, अगर ये इस कंडीशन पे ये अगर मिरर है ना, सो इसको मैंने वर्टिकल कर दिया सिर्फ, है ना। यहाँ से लाइट आ रहे, दिस इज लाइट, ये नॉर्मल, ये मिरर से ये ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज लाइट इज कमिंग हियर and light incidenting normally through this mirror is reflecting to this direction. So one light is this one, another light is reflecting on this portion and it is reflecting this one. So you can put this is a dot line. So this is a virtual image. Now जो है आपका, so in this situation, so आपका जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है ना, इंसिडेंट, सो दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज आर। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन और द इंसिडेंट पॉइंट आर एट सेम प्लेन, एट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर सेम प्लेन, क्योंकि बोर्ड प्लेन में होता है, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा, है ना। और अनदर वन इज इंसिडेंट एंगल इक्वल टू ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। सो दिस वन मींस जो है आप यहां से आप ये कर सकते हो ना। सो आपका जो है आप यहां से आपको, सो इज दिस एंगल इज दिस वन, सो दिस एंगल विल बी दिस एंगल एंड ये इसका 90 डिग्री, सो दिस इज विल बी दिस। सो इफ योर ऑब्जेक्ट इज P, this is incident O, this is P prime. So यहाँ से two triangles are similar, है ना। ये आपका जो अगर ये है ना, so APO triangle जो है ये equivalent जो है similar to triangle AP prime O. So यहाँ से OP equal to OP prime, मतलब image distance equal to your object, this is your object distance equal to image distance. So ये सब प्रॉब्लम आपने किए हैं, this is for your plane mirror, है ना। So by plane mirror your object is creating, ये जो है रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज है। सो रियल इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, आपने लेंस में देखेंगे, है ना। सो लेंस में ऐसे लाइट जाके यहाँ पे आपको जो है, हमने सनलाइट के नीचे when you are putting your lens, so this is sometime this is your plane of paper, you are putting your lens here, so sunlight is coming and sometime it is focusing here and your paper is just burning. So इस टाइप का आपने देखे है ना बचपन पे। so ये this is real image, है ना, this is real image. So real image formed by lens, but sometime by using plane mirror you can also create real image. कैसे, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है ना, प्लेन मिरर से हाउ यू आर क्रिएटिंग रियल इमेज। सो इफ योर दिस इज ए प्लेन मिरर, है ना, एंड इफ योर इंसिडेंट रे इज दिस वन एंड जो है और भी कुछ जो है अपने दिस वन, सो ये यहाँ पे जाके रिफ्लेक्टेड होता और रिफ्लेक्टेड होके इधर आपको मिलेगा, है ना। सो ये समहाउ इधर मिलता था, है ना, इस पॉइंट में इट इज थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सीधा करना है एंड ये दिस इज योर, सो इट इज सम, if there is this is incident ray, if there is no mirror then it is just two beam is just meeting here, but due to there is a mirror it is reflecting it and an image formation is here. So this is a real image formed by a mirror. This is a typical question, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व ये करना आना चाहिए। सो ये थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का जो हमने ब्रीफ कर दिया। आप थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सेट का हम जिक्र करते हो, प्रॉब्लम सेट आपका घर के लिए, है ना। ओके, फॉर योर होम टास्क देयर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सो आई एम गिविंग 3 प्रॉब्लम, जस्ट प्लीज डू इट इन योर होम। सो दिस मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, एंगल थीटा, है ना। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज इज आल्सो, मतलब यहाँ से ये जो है दिस इज योर मिरर एंड इफ मिरर इज रोटेटिंग विथ दिस एक्सिस, है ना, this axis, so reflected ray, this one is rotated by 2 theta angle,
This is your home task. If a person is moves with velocity v in a mirror, है ना, then towards the mirror, then image will move, then this image will move with respect to twice v speed with respect to this body. इस body के respect में twice v speed से move होते हैं. The angle between two mirror is theta. Third one is the angle between two mirror is theta. Then number of angles. So this is your angle, and this is two mirror is here. If angle is मान लीजिए 60 degree, the number of image n equal to 360 by 60 minus 1. So क्या है 5 image formation होगा इधर. And if two mirror is parallel, then how much angle is 0. So n is infinity. That you observed in your जो है सैलून, है ना. सैलून में आपने क्या देखते हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं चेयर पे, and there are lots of images here and there. So two mirror are placing जो है आपका. So आप आपका पीछे के साइड भी देख सकते हो, साइड भी देख सकते हैं ना. So there are lots of image means it tends to infinite image when two mirror are plane. So ये आपको प्रूव करने के लिए दे, है ना. तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. So now the reflection, so far you have solved your reflection program and laws in your plane mirror, but laws of reflection और जो है इन carved mirror ये भी हम डिस्कस करेंगे. So reflection and carved mirror, है ना. रिफ्लेक्शन इन कार्व्ड मिरर, है ना. सो हमने अभी तक प्लेन मिरर के बारे में देखे थे, है ना. सो आप देखेंगे रिफ्लेक्शन इन जो है कार्व्ड मिरर. सो व्हाट टाइप्स ऑफ कार्व्ड मिरर ये. सो ये भी एक मिरर हो सकता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्व्ड मिरर एंड दिस वन ये यहाँ पे कोटिंग है इस साइड में, है ना. जहां से आप मुंह देख रहे हो ना आपका, ये आप खड़े हैं, है ना, ये आप यहाँ से आपका मुंह देख रहे हो, मैं ये टेढ़ा सरफेस में देख रहा हूं. एंड ये जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना. एंड अगर ये सरफेस में होगा, सो ये बाहर की सरफेस में, सो आप यहां से आप देख रहे हो, है ना. सो ये जो है यहाँ से जो देख रहे हो ये इसकी सरफेस में, सो इसका सरफेस जो है ये कॉनकेव. सो व्हाट इज द यूटिलिटी. यूटिलिटी इन डिफरेंट टाइप्स जो है डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, जो है. और जो है आपका इसमें जो है व्यू फाइंडर, जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, जो आपका कार ड्राइव करते हो व्यू फाइंडर, तो वहां पे आपका जो है कॉन्वेक्स. सो आप देखोगे जहां पे और जो प्लेन मिरर है ना. सो व्यू फाइंडर और गाड़ी का जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर. दिस इज योर प्लेन मिरर, है ना. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. सो कॉन्वेक्स मिरर में जो आप आगे देखेंगे, सो दिस इमेज इज जो है जस्ट लाइक जो है आपका सेम मिरर, सेम इमेज, सेम डायरेक्शन पे इमेज विथ स्मॉलर इमेज, है ना. कार में जो है व्यू फाइंडर में आपका जो दोनों कान पे है ना, तो इन दोनों एयर पे, तो व्यू फाइंडर में आप देखते हैं स्मॉल इमेज दिखाते हैं, क्योंकि वो लार्ज जो है पीछे कितना सारे कार सारे, उसका जो है बहुत छोटा छोटा जो है वो करके आपको जो है यहाँ पे आपका जो है कार में जो दिखाते हैं बहुत एक सेम डायरेक्शन. अगर उल्टा दिखाएंगे तो मतलब आप समझ नहीं, ये रस्वी नहीं कर पाओगे ना. सो दैट्स व्हाई. सो ये जो मिरर है दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर, है ना. यहाँ पे आप जो है छोटा इमेज बट विथ जो है सेम टू सेम आइडेंटिकल जो है आप देख सकते हो. बट इन कॉन्केव मिरर वो आपका बिगर साइज देखते हैं फोकस लेंथ के अंदर. अगर फोकल लेंथ के अंदर अगर देखेंगे, सो देयर इज ए बिगर वन फोकल लेंथ के अंदर, है ना. अगर फोकल लेंथ के बाहर होगा तो वो आपका छोटा ये हो जाएगा. सो उसमें आप देखते हैं डेंटिस्ट लोग आपका दांत के नजदीक रख के देखते हैं, थोड़ा बिगर देखते हैं, बट जो है कॉन्वर्टेड, है ना. ये जो है
ये आपका जो है ये उल्टा अपना है कन्वर्टेड दिखते हैं। सो ये प्लेन मिरर में आपका जैसा साइज है उतना ही दिखेंगे। So that is the biggest difference between this between three types of mirror. So now we will be focusing on reflection in curved mirror. Okay. So curved mirror में reflection, laws of reflection, incident angle equal to जो है reflected angle ये तो already valid है, सब laws of reflection is valid here, and जो है incident ray, reflected ray and on the plane normal to on this plane of this reflection are at same plane. So if your this is your जो है आपका कॉनकेव मिरर जो है कॉन्वेक्स है ना, दिस इज योर कॉन्वेक्स या जो है आपका या इसमें जो अगर इसमें कॉनकेव ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, इसमें दिस वन इज योर दिस साइड दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज योर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बिगर वन और थोड़ा बड़ा करते हैं, कार्व है ना। सो दिस एक जो है ये आपका जो है यहां से आपको देखना है ना। नाउ सी यहां पे आपका एक कार्व लग रहे है ना, कार्व का जो है एक सेंटर रहेगा, दिस इज सी एंड इसका फोकस है ना। सो ये जो है आपका ये एम, दिस इज मिरर है ना, एम प्राइम। सो एम प्राइम इज एपर्चर, मिरर का जो है एक्चुअल लेंथ है ना ये एपर्चर, और सी इज योर जो है सेंटर ऑफ ये जो है सी एंड जो है आपका एफ ये फोकल लेंथ है ना। फोकल लेंथ में एनी पैरेलल रेज कमिंग हियर इट इज गोइंग टू दिस प्रिंसिपल फोकस। सो एफ इज प्रिंसिपल फोकस, और जो है कॉन्वेक्स मिरर के जो है इसमें आप वो उधर चला जाएगा। सो ये कॉन्केव के लिए, अगर कॉन्वेक्स होता जो है ये इस टाइप का है ना, ये होता तो क्या होता आप इसमें जो है इसमें हाँ इसका जो है ये उल्टा साइड में होगा, यहां से तो रिफ्लेक्शन होगा ना। सो दिस इज प्लेन मिरर एंड ये जो है आपका ये इसका पैरेलल और ये रिफ्लेक्टेड होकर इधर चला जाएगा या और ये नजदीक। सो इसका इस एज इफ यहां से जैसे आ रहे हैं, सो दिस वन, सो यहाँ पे फोकस होता है, दिस इज फॉर योर कॉन्वेक्स है ना, एंड ये कॉन्केव के केस में ये। सो ये सी सो दिस इज द कर्वेचर, सो सी इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, कर्वेचर, and this is your x prime, this is principal axis ना। so this is ray of light, this is O A B, so this is ray of light, O is incident ray and OB is reflected ray। so parallel ray will go to फोकस ऑफ दिस, जैसे आप लेंस में की करेंगे है ना। सो अब आपको जो है आपको थोड़ा सा यहाँ से जो और यहाँ सेंटर टू इसका जो अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज नॉर्मल टू दिस है ना। किसी भी सर्कल में सेंटर से इसका जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज नॉर्मल ना, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल इज नॉर्मल है ना। सो दिस इज नॉर्मल। So again this is incident angle, this is reflected angle, this one is same है ना अब है ना। So again this angle, so this angle and this angle is same from laws of reflection, okay, and this angle and this angle is, this is your geometric, from this angle and this angle is same, so this angle same, this angle same, so this one and this one is your same, so that's why this ये जो है आपका ये और this one, so from triangle CFA जो है आपका CF equal to जो है AFA
है ना, CF इक्वल टू FA। नाउ स्मॉल एपर्चर फॉर स्मॉल एपर्चर, है ना, स्मॉल एपर्चर लेंस मतलब वो छोटा लेंस जो है, ये आपका छोटा है, स्मॉल एपर्चर के लिए आपको यहाँ जो है, तो आप यहाँ से ये अगर O है, सो स्मॉल एपर्चर के लिए आप क्या कर ये लिख सकते हो, FA नियर अबाउट FO, सो CF इक्वल टू FO लिख सकते हो। सो CF और FO इज सेम, मीन्स CF is, so now here CF and OF is, this is focal length, this is focal length F, this is focal length, and CF जो है, CF and OF ये जो है ना, और OC is your radius of curvature, so this is R, so OF equal to half of OC, है ना, ये OC का हाफ OF है ना, सो OF मीन्स F इक्वल टू R over 2, so this is a famous relationship, so focal length equal to radius of curvature by 2, okay। नाउ आप जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन जो है कार्व्ड मिरर, ये सब भी प्रूव करेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, बेसिकली मिरर इक्वेशन हम ये करेंगे, डिडक्शन करेंगे मिरर इक्वेशन, क्या है ना। सो ये सबका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, है ना। सो टू लाइट यू हैव टू कंसीडर, वन लाइट इज ग्रोइंग this parallel to this mirror, okay, and it is going to the focus of this, so somehow this is focus, है ना, and another one is going to the center of this mirror, ये center of this, ये है ना, and it is reflecting back, this is because this is 90 degree, है ना। so image is formation here, so this is a converted image, okay। So now, so this is the here, so this is your PQ and this is converted image, this is small p small q and this is again जो है आपका O and this is A, है ना, and OA and this is जो है आपका, अब यहाँ से ये आपका इमेज फॉर्मेशन एंड ये आपका, सो कॉनकेव मिरर के केस में जो है आपका छोटा ये होता है जब आपका फोकस से ये यहाँ पे, है ना, फोकस के ज्यादा होगा तो कॉनकेव केस में छोटा आ जाएगा, अगर फोकस के अंदर रहेगा सो इट विल प्रोड्यूस लार्जर इमेज, सो जो डेंटिस्ट लोग देखते हैं ना, जो कुछ टाइम पहले बता रहे थे। सो नाउ यहाँ पे आपको मिरर इक्वेशन सॉल्व ये मिरर इक्वेशन आपको डिडक्शन करना है, कैसे करना है। सो ट्रायंगल जो है आपको ट्रायंगल क्या क्या देखना है सब, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सो दिस इज योर बी। सो नाउ ये जो है आपका एंगल कौन सा है, ट्रायंगल, ये जो है ट्रायंगल जो है PQC एंड जो है ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड जो है स्मॉल PQC, ये वाला ट्रायंगल में क्या होगा आपका, सो PQ ओवर, सो ये वाला जो है सेम जो है दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, सो PQ ओवर जो है स्मॉल q इक्वल टू क्या होगा आपका, ये जो है CQ ओवर जो है C स्मॉल q, ओके। दिस इज योर इक्वेशन 1। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल जो है ये वाला ट्रायंगल क्रॉस, ये डॉट लगा दिया, ये क्रॉस और ये वाला ट्रायंगल कौन सा जो है F ट्रायंगल FPQ एंड ट्रायंगल जो है आपका FBA, है ना, ये ट्रायंगल। सो ये क्रॉस वाला जो एरिया है ना वो देखिए FPQ एंड इसमें जो है सेम ट्रायंगल आर सिमिलर, सो आपको जो है आपको क्या करना है, AB ओवर जो है PQ इक्वल टू ये क्या होगा आपका FB ओवर जो है F स्मॉल q, ओके।
नाउ ए बी फॉर स्मॉल एपर्चर है ना, स्मॉल ये जो है ए बी एंड ये जो है पी क्यू सेम। स्मॉल एपर्चर मतलब एपर्चर बहुत छोटा है ना, ये तो हमने बड़ा करके देखा है हमने, ये आपका जो इक्वेशन डेवलप ये करने के लिए, इक्वेशन इसको डिराइव करने के लिए है ना। ना अब उसी केस में क्या होगा, जो है एफ बी नियर अबाउट जो है एफ ओ, सो एफ बी को हम एफ ओ लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है सो इसको ए बी को पी क्यू ओवर स्मॉल पी क्यू इक्वल टू जो है एफ ओ ओवर एफ क्यू, ये इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जस्ट सी, सो दिस वन इज कॉमन वन है ना। नाउ यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर रख के लिखते हैं। सो यहां से आप कॉमन लेके आपको लिखना है सी क्यू ओवर स्मॉल सी क्यू इक्वल टू जो है एफ ओ ओवर जो है एफ क्यू। ओके, सो नाउ आप यहां से साइन करो, सो दिस इज योर लाइट डायरेक्शन, सो ऑलवेज पुट योर लाइट डायरेक्शन एंड सो नाउ साइन कन्वेंशन इज जो है टुवर्ड्स लाइट जो है पॉजिटिव एंड एगेंस्ट लाइट जो है नेगेटिव। सो ये उल्टा भी आप लिख सकते हो, जैसा भी आपका डिफरेंट किताब में है, डिफरेंट ऑथर्स आर टेकिंग डिफरेंट, सो इसमें कोई मतलब ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सो हम यह कन्वेंशन ले रहे हैं, लाइट जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे जो मेजरमेंट है ना उसको जो है पॉजिटिव मानते हैं, और उल्टा डायरेक्शन पे जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी नेगेटिव। सो सी क्यू जो है सी क्यू है ना, सी क्यू इज योर, नाउ सी क्यू इज द बेसिकली ओ क्यू है ना, सी क्यू बेसिकली क्या है ओ क्यू माइनस ओ सी है ना, बाय जो है सी स्मॉल क्यू मतलब इज ओ सी माइनस है ना, ये जो है ओ सी क्यू इज ये जो है ना इसका सी क्यू इज मतलब ओ सी माइनस ओ क्यू इक्वल टू ओ एफ ये जो है ओ एफ ओवर एफ क्यू मीन्स जो है ओ क्यू माइनस, ओके, ओ क्यू माइनस ओ एफ। सो दिस इक्वेशन आप यहां से आप देखिए, सो ये थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। आप ये वाला इक्वेशन देखिए, ओ क्यू मीन्स ओ क्यू, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आर टेकिंग फ्रॉम योर जो है यहां से आपका जो है यहाँ पे लेंस का जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ये लेंस का ये वाला पॉइंट से आपको लेना है। सो ये वाला पॉइंट से आप मेजर कर रहे हो इस डायरेक्शन पे ओ क्यू है ना, सो इस डायरेक्शन में मतलब दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस जो है यू माइनस ऑफ ओ सी मीन्स टोटल जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है ना, आर इज माइनस ऑफ ट्वाइस एफ बाय क्या होगा आपका ओ सी इज मीन्स माइनस ऑफ ट्वाइस एफ ओ सी माइनस जो है ओ क्यू इज अगेंस्ट जो है ये इमेज डिस्टेंस, ये जो है आपका माइनस ऑफ वी। ओके, सो दिस वन इक्वल टू ओ एफ इज द फोकल डिस्टेंस अगेंस्ट लाइट देर है माइनस एफ ओवर जो है ओ क्यू इज माइनस ओ क्यू मीन्स जो है माइनस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये इधर ले रहे हैं ना, सो ओ क्यू इज माइनस वी एंड माइनस ऑफ ओ एफ जो है माइनस ऑफ जो है ओ एफ, सो इधर जो है आप फोकस ले रहे हो, सो माइनस ऑफ एफ, सो दिस वन, सो हाउ मच इट इज, सो दिस इज इक्वल टू यू प्लस ट्वाइस एफ बाय माइनस ट्वाइस एफ प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ बाय जो है माइनस वी प्लस एफ है ना,
सो यहाँ से आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ से सॉल्व करना है, ये मतलब माइनस जो है यू भी माइनस ट्वाइस एफ भी जो है, और जो है यहाँ पे क्या होगा माइनस यू एफ प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच इट इज ट्वाइस एफ स्क्वायर जो है माइनस वी एफ। ठीक है, ट्वाइस एफ स्क्वायर कट गया। सो यू भी इक्वल टू जो है उधर जाएगा यू एफ प्लस एफ भी, है ना। सो दिस वन, so ultimately what you have obtained from these equations and everything, u v equal to जो है u f प्लस v f मतलब f भी है ना। सो डिवाइडिंग बाय u v f, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 1 बाई f इक्वल टू, ये इसमें क्या होगा 1 बाई v प्लस 1 अपन u। सो दिस इज फेमस जो है मिरर इक्वेशन, है ना, ये फेमस मिरर इक्वेशन। तो ये आपको एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आपको सॉल्व करना है, और जो है आपको ये इक्वेशन के यूज करके आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स करना है ना। सो ये आपको एक बार प्रैक्टिस करना है ना, अदरवाइज यू कैन नॉट, कहीं आपको ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सो आपको एक बार प्रैक्टिस करना है क्विकली, है ना। ओके, सो नाउ आप देखिए, अब ये जो है हम थोड़ा सा इसको ये वाला ट्रायंगल को लेते हैं ना। अब ये वाला ट्रायंगल में आपको जो है, अब ये देखिए, है ना, आप यहां से डॉट 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 करके जो है ले रहे हैं, ये है ना, ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, और ये जो डॉट डॉट करके ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, आप ट्रायंगल देखिए कौन सा, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल जो है ये आपका पी था ना, पी ओ क्यू, एंड ट्रायंगल जो है ये वाला कौन सा है, स्मॉल पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल है ना, और ये वाला ट्रायंगल के लिए स्मॉल पी ओ क्यू, ये वाला। तो इसमें क्या होगा आपका, ये बोथ आर सिमिलर, सो पी क्यू बाई जो है स्मॉल पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू ओवर क्या होगा ओ क्यू। सो दिस जो है ओ क्यू ओवर, ये जो है आपका ओ क्यू ओवर जो है स्मॉल ओ क्यू। ओके, सो आप पी क्यू बाई पी क्यू, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट है, या उल्टा करके लिख सकते हो, है ना। सो ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल पी क्यू बा कैपिटल पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू बाई ओ कैपिटल क्यू। सो स्मॉल पी क्यू से दिस इज योर इमेज जो है, पी क्यू इज द इमेज लेंथ, ये है ना, ये है आपका इमेज लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ है ना, इक्वल टू ओ क्यू, ओ स्मॉल क्यू इज द, ये जो है ओ स्मॉल क्यू इज योर, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस, एंड ओ कैपिटल क्यू इज योर ओ कैपिटल क्यू, ये दिस इज योर, ये आपका जो है आपका इमेज है ना। सो ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट। नाउ आप यहां पे देखिए एक चीज देखिए, यहां से जो पी आई बाई ओ है ना, आई बाई ओ, ये जो है आपका ये उल्टा डायरेक्शन पे होगा। सो ये आपका इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगा, सो देयर विल बी नेगेटिव साइन। सो इमेज ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज योर बेसिकली मैग्निफिकेशन। सो इमेज डिस्टेंस, इमेज ओवर ओ इज योर magnification, this is basically m equal to image distance जो है by object distance. So v is your image distance
by your object distance. So जो है मैग्निफिकेशन इज v ओवर u. अब जो है एक ये तो एक लाइन के लिए, अब अगर ऐसा रेक्टेंगल रहेगा तो क्या होगा आपका, जहां लेंथ एंड ब्रेथ है, तो क्या होगा आपका इमेज डिस्टेंस जो है आपका यहां पे जो है, सो इमेज डिस्टेंस एल प्राइम बी प्राइम इक्वल टू क्या होगा, जो आपका इमेज से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ये आपका, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से एम टाइम होगा एल, ये भी एम टाइम होगा बी, सो दिस इज योर एम स्क्वायर एल बी. सो स्क्वायर और एरिया के केस में ये होगा दिस इज योर एम स्क्वायर टाइम. सो दिस इज योर वन सिंगल लाइन के केस में दिस इज एम इक्वल टू वी ओवर यू, है ना. एंड फॉर योर एरियल केस में दिस इज एम स्क्वायर. ओके, सो एल प्राइम b prime equal to m square lb. Okay, so this is the mirror equation and with the base of this equation we will be solving different types of problem. ठीक है, पढ़ते रहिए. थैंक यू.